Hello, my name is Vaibhav Jaiswal. I work on a capacity of a CEO in the company called First Keys. The reason why I started this firstkeys.com was pretty much simpler. After working in real estate consultancy industry for 5 years, I had understood one point कि this is not only and only about real estate consultancy और real estate broker, जिसको हम लोग नॉर्मल देशी भाषा में बोलते हैं कि एक प्रॉपर्टी दिलाई, एक बंदे से दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी दिलाई. इट वॉज मोर ओवर लाइक फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री, लाइक अदर departments, or I'll say other industries which are into service. This is also a service industry. So I always felt कि इसमें there are number of companies when it comes to genuine companies जो customer के साथ बहुत transparent रहते हैं, that number is very less. This was the reason why I started this firstkeys.com. See, as I said कि I came into this industry in 2010. Before coming to this industry, prior to this, I was working with the financial sector. There also I was dealing with customers, but that was only on the financial ground, like उनको mutual funds बेचना या insurance policies बेचना या bank accounts, something like that. When I entered into this industry, this has really given me a sense of satisfaction. When I used to sell insurance policy, there is a difference between a tangible and intangible product. तो मैं जब इंश्योरेंस में था तो वहां पे मैं सिर्फ ड्रीम सेल करता था. यहाँ पे मैं ड्रीम्स इन रियलिटी सेल करता हूँ. यहाँ पे जब मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करता हूँ तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग. जब एक कस्टमर है, उसकी एक नीड है, टेक एन एग्जांपल, समबडी इज लुकिंग फॉर अ होम समथिंग अराउंड 80 lakhs टू 1 CR, और वो पूरे 3 महीने 4 महीने अपने हार्ड अर्न मनी को लेके स्ट्रगल करता है कि मुझे यार एक घर दिला दो, और कोई इसको जब नहीं दिला पाता, फाइनली इफ दैट कस्टमर इज गेटिंग क्लोज बाय मी और बाय माय टीम, तो इट गिव्स अ वेरी सेंस ऑफ ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है. प्लस टॉप लाइन आंसर यही है कि द काइंड ऑफ मनी व्हाट वी गेट फ्रॉम रियल एस्टेट वी वोंट बी एबल टू गेट फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री. See, when it comes to Gurgaon, we have already seen a plenty of transformations when it comes to city like Gurgaon. If I talk about Gurgaon, आज से 10 से 15 साल पहले क्या था? I still remember a time in 2001 when I was doing my graduations. We used to come to महिपालपुर. महिपालपुर तक हम आते थे शॉपिंग करने और उसके आगे नहीं जाते थे शाम को, because we always felt कि यार ये जगह बहुत रिस्की हो जाती है. That was way back in 2000 and 2001. But over the period of time, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है. People have invested in this location and people have earned almost 7 to 8 times of their investments. So मैं ये नहीं कहूँगा कि गुड़गांव किसी से लॉस हुआ. हाँ, there was a time in गुड़गांव जब लोगों ने बहुत ज़्यादा फास्ट मनी मेकिंग के चक्कर में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स की. That was a place जहाँ लोगों को थोड़े बहुत हिट्स लगे. But it's all कहते हैं ना, part and parcel of the game. Gurgaon, for me, in the next 5 years, will be, as we always say, as you all know that this is the Millennium City. Gurgaon will be one of the hotspot area in all across India for investments and for end use purpose as well. People will move into this place because this place is having far better infrastructure and far better facilities as compared to any other metro cities. See, miscommitment has already started being controlled, as we all know that the RERA is coming into action. So once this RERA will be finally completed और वो पूरी तरीके से जब एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग ने वैसे भी आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, मिसकमिटमेंट जितने भी डेवलपर्स करते थे, पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट एवरीथिंग. देयर वाज अ टाइम जब जो भी कस्टमर होता था बहुत ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता था. अब कोई भी कस्टमर ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करता है. वो सारी चीज़ें इंश्योर करता है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, ऑल द लैंड पर्टिकुलर लैंड टाइटल इज क्लियर, और सारे पेमेंट प्लान जो हैं वो सारे फुल प्रूफ हैं. बैंक लोन्स अवेलेबल है कि नहीं इस प्रॉपर्टी में, व्हाट्स द डेडलाइन की प्रॉपर्टी कब तक कंप्लीट होगी. तो मिसकमिटमेंट्स वैसे भी पूरी तरीके से आप देखोगे, मैं आई वोंट से टोटली वैनिश हो गए, बट 80% वो वैनिश हो चुके हैं मार्केट से ऑलरेडी. एंड वंस द रेरा विल कम इनटू पिक्चर, फुल थ्रॉटल जब वो रेरा आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से जो बची हुई चीजें हैं वो भी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, बी इट फ्रॉम द कंसल्टेंट साइड और बी इट फ्रॉम द डेवलपर साइड. See, I'll say online promotion is always beneficial, but when it comes to challenges, initially what used to happen, there were only few number of players who used to work on this online promotion wala model, or I'll say online model for lead generation or marketing their product. Now it's happening ki nearly each and everybody is using this medium of online promotion for generating lead or for marketing their particular product. So initially what used to happen, customers को ये लगता था कि anybody who is using a online promotion और online media का use कर रहा है अपने product को market करने के लिए, that's a very decent kind of developer और very decent kind of consultant जिसके पास proper knowledge है और वो एक professional कंसल्टेंट के साथ डील कर रहा है. चैलेंज आज की डेट में यही है कि बीइंग एक ऐसा कंसल्टेंट हो जिसको शायद वो
एडवांटेजेस नहीं मिल रहे हैं डेवलपर से, वो भी वही सेम चीज़ कमेंट करता है, और प्लेयर्स लाइक अस और एनी अदर .com कंपनीज भी वही सेम चीज़ कमेंट करते हैं। तो क्लाइंट के लिए ये आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कि बॉस मैं किसके साथ जाऊं। उसको सिर्फ थोड़े से पैसे ज़्यादा देने होते हैं बिडिंग में और अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो गूगल में ऑनलाइन टॉप पे दिखने लगता है। तो क्लाइंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा विच इज़ अ बेटर प्लेयर और आई से बेस्ट प्लेयर टू गो अहेड विद। सिर्फ ये एक चैलेंज, अदरवाइज ऑनलाइन मीडिया हैज़ बीन अ वेरी गुड मीडियम फॉर जनरेटिंग लीड्स और फॉर मार्केटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। See, आज के डेट में I'll be very honest, winning a customer is the only and only mantra is that be transparent. No need of fake commitments. There was a time जब आप fake commitments करते थे, आप manipulations करते थे, but now I guess there is no space for manipulation left. Client is much more smarter than us. Client जब हमारे पास आता है तो वो अपना सारा homework already करके आता है. Trust me on this. अगर आज कोई क्लाइंट, अगर सुबह किसी ने मुझे क्वेरी डाली तो दैट क्लाइंट हैज़ बीन सर्चिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम पास्ट 20 डेज। वो 20 डेज में अपना सारा होमवर्क कर चुका होता है, वो रेडी रहता है अपने सारे आंसर्स के साथ, सारे क्वेश्चंस के साथ हमें काउंटर करने के लिए। सी द ओनली वे टू टैकल दोज कस्टमर इज अबाउट योर नरेटिंग अबाउट योर सर्विसेज। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी है, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट सर्विस रखते हो और आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी गुड, आपको अगर आप ये बिलीव करते हो कि यू आर हैविंग अ टेरिफिक आफ्टर सेल सर्विस, देन ओनली यू विल बी एबल टू बाय कहते हैं विन अ कस्टमर ओवर अ ब्रोकर। अदरवाइज कस्टमर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आज के डेट में डेवलपर्स भी वो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे देते हैं जो कंसल्टेंट देता है। सी फर्स्टली आई विल डिफर फ्रॉम दिस पॉइंट. I won't say that I'm a real estate broker. There's a very thin line of difference between a real estate broker and a real estate consultant. A broker itself a very negative word. अगर आज हम किसी से बोलेंगे बॉस आई एम अ ब्रोकर, तो उसके दिमाग में सबसे पहले, चाहे मैं किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ का ब्रोकर हूँ, तो कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है, यार ये ब्रोकर है तो डेफिनेटली इसका कोई कट होगा, इससे मुझे सिर्फ एक ही एडवांटेज है, ये मुझे मेरी डील दिला देगा लेकिन ये अपना कट उसमें रखेगा। वेयर एज इफ आई से दैट कि आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो उसको लगेगा ठीक है, कंसल्टेंट मीन्स अ हेल्पर, समबडी हु कैन हेल्प मी इन टेकिंग द राइट डिसीजन। हमने कभी नहीं सुना अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट, हमने कभी किसी दूसरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि बीच में कंसल्टेंट्स नहीं होते। व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनीथिंग लाइक आई विल से बैंक एश्योरेंस में भी एक थर्ड पार्टी प्लेयर, एक बैंक इन्वॉल्व होता है फॉर सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। हम कभी उनको ब्रोकर नहीं बोलते, वी ऑलवेज से दैट दे आर द वेल्थ मैनेजर्स और द कंसल्टेंट्स। तो रियल एस्टेट में ही हम ब्रोकर टर्म क्यों यूज करते हैं? इट्स मतलब फॉर मी, आई विल बी no offenses to anybody, but for me stating this word broker is itself a very negative one. So I'll prefer stating myself that I am a real estate consultant rather than saying that I am a real estate broker. Then coming to your question कि benefit वही है कि आप आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हो, आप क्लाइंट को किस तरीके से गाइड करते हो। आप क्लाइंट को अगर गलत प्रोडक्ट नहीं पिच कर रहे हो तो डेफिनेटली विल विन। Be patient. I'll say be patient. This is a tough market for all of us. From past 2.5 years, we are facing turmoils. You have to be patient. ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को सेव करने के लिए कुछ भी गलत बेच दूं। हालांकि वो मार्केट नहीं है आज की डेट में जहां आप कुछ भी गलत बेच सकते हो, बट दे आर कपल ऑफ प्लेयर्स जो कुछ भी बेच रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लैंड टाइटल्स क्लियर न हो या अथॉरिटी से क्लियरिटी न मिले, वो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए। आई सीन कपल ऑफ बिग प्लेयर्स सेलिंग प्रोडक्ट्स इन एल जोन और एनी अदर चीज़ की अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है। I won't encourage that. तो सजेशन यही है कि बी फेयर टू द कस्टमर्स। अल्टीमेटली these are the people जो आपके बिजनेस को लॉन्ग रन में ले जाएंगे।